very connected to this human being called Sushant Singh Rajput क्योंकि he had the same journey and the same fight that even a Shah Rukh Khan had. Yeah. Completely coming out as a sore thumb, coming and like rampaging the industry with talent. I don't know Karthik's journey like that, but if you see it from afar, he will tell you what he must have been through. Musicians who go through depression the most, I think, in our industry. मेरे डैड की स्ट्रगल्स और अन्नू अंकल की स्ट्रगल्स इतनी देखी है एंड सो मच दे हैव टेकन ऑन देमसेल्व्स. मम्मी को सबने इतना फ़ोन कर दिया था ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन आई सेड दैट आई एम गोइंग थ्रू दिस डिप्रेशन एंड आई एम कीपिंग अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद माय फैमिली. सोशल मीडिया मेड माय पेरेंट्स अंडरस्टैंड हाउ ग्रेवली थिंग्स हैव अफेक्टेड मी. Parents see it from a very broader point of view. Sometimes they can be right, sometimes they can be wrong. बड़े बड़े से बच्चों पे हमेशा ज्यादा कुछ तलवार गिरती है ना. हाँ, हमेशा यही लिखा गया हर जगह. Clinically depressed and has problems with brother. So वो comparisons जो करने लगते हैं friends, family, parents किसी और के journey से, वो कहीं ना कहीं हर एक इंसान को affect करता है. Obviously a lot of people be like अरे यार ये बहुत बोलता है, अरे यार इसको मत काम दो, अरे इसको काटो. और ये कहीं ना कहीं स्मॉलेस्ट लेवल से बड़े लेवल तक भी है. देयर कैन बी एन असिस्टेंट डायरेक्टर हु विल गो एंड पॉइजन अ डायरेक्टर. देयर विल बी 4-5 पीपल अराउंड हिम हु विल पॉइजन हिम, हु विल से थिंग्स टू हिम. लेट्स गेट दिस बॉय आउट. You've lost work because of that? फुल्ली रोक लो जितना रोकना है. लोगों के दिल में उतरने से तो नहीं रोक सकते ना. Since our podcast is called Uncensored with Shardul, let me tell you that हमारे जो आज के गेस्ट हैं इनके DMs में slide कर करके I have finally found him and I finally convinced him to be on the show. Amal, I want to know from you, how many DMs have you slid into? इस साल का गिने तो 5-6 होंगे. Okay, do you want to talk about any famous DMs that you slid into and you were like कि achievement? जैसे मेरे लिए achievement था finally तुम्हें यहाँ पर बुला के podcast करवा. I don't know if she read it, but I messaged Dakota Johnson. Really? What did you write? Nothing. I heard you're single, so I would like to meet you. Oh, okay, like that. No shades of grey. No, not yet. I disclose my shades after a few meetings. All right. You know, my first question to you is obviously going to be about music. Music is something that I love, you love, and you've been having a great run at music. But after that also, I want to ask you, do you consider yourself an artist, a celebrity, or just someone who's, learning music still? I think as a musician, in my mind, obviously, there is learning happening every day. Even now, there is an understanding कि यानी किसी को भी यानी मैं हूँ या even if the biggest composer of the world, someone can come and teach you something which you have never known before. There can be a 16-year-old kid जो आज आके आपको एक ट्रिक सिखा दे आपके सॉफ्टवेयर पे या बोले कि अच्छा can we do it in a different way. तो आई थिंक वो एक रिसेप्टिव क्वालिटी मुझ में तो है कि मैं सीखता हूँ सबसे. तो आज तक आई एम अ स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक. But if you say as an artist, the journey has been, it's been 10 years. This is the 11th year of me as a music composer in the film side and, the industry. So usually, इतना beautiful dream run तो नहीं होता है आज के टाइम में. But यानी 10 साल कैसे बीते और कैसे हुए almost 150 गाने, it's unbelievable. Celebrity by chance हूँ मैं. मैंने कोई ऐसी खुद को पैप करवाना ये कराना इधर उधर दिखना मैंने बहुत कम किया है. बट इट्स बिन मोर अबाउट कि मैंने अपनी इनर वॉइस से अपनी बातों से जो लोगों का दिल छुआ है. आई थिंक पीपल हैव कनेक्टेड टू दैट and I think celebrated me more than making me a celebrity. I think people felt that he's one of us. Yeah. That kind of, I think I'm a people's person and a people's champion. So people feel that. But why I want to ask you this question is कि okay, let's say अगर मैं आपसे पूछूं अपने 11 साल की journey में, which is that one album or one song or one project where you say that okay, this is my best. I think MS Dhoni would be that. And very young Amal Malik, 25-year-old, wanting to do his best, and tough opportunity to come by for a newcomer. यानी वो फिल्म पहले रहमान सर, प्रीतम जैसे दिग्गजों के पास they were the first in line. मैं कहीं भी नहीं था to get such a film. But when that happened and the music happened, it's 10 years to even MS Dhoni, the album. So I think a lot of kids, not just जो हिंदी listening वाली audience है, I think उस time पे even the album was dubbed in Marathi, in Telugu, Tamil. हर एक
पार्ट ऑफ इंडिया से मुझे यानी मैसेजेस आए फ्रॉम यंग किड्स कि ये एल्बम दिल को छू गया, ये आपका बेस्ट वर्क है। और मैं भी मानता हूँ क्योंकि मुझे इस एल्बम पे बहुत फ्रीडम मिला। यानी मेरे डायरेक्टर नीरज पांडे ने मुझसे ज़्यादा मेहनत किया आउट से क्योंकि हिज माइंड सेट ऑल्सो ऑन दिस एल्बम वॉज कि मैंने अब तक वेंसडे की है, स्पेशल 26 की है, ऐसी फिल्में की है जहाँ म्यूज़िक इज़ यानी एक दो बेबी ऑल्सो एक दो गाने हैं, बट ये पहली साउंड ट्रैक है जहाँ 7 या 8 गाने हैं। सो ही वॉज लाइक वी रियली नीड टू वर्क हार्ड। एंड एक इंसान मेरे और मनोज मुंतशिर के सिटिंग रूम पे आते थे एंड 3 महीने 27 गानों के बाद वो 7 गाने बने MS-2। 27 songs Yes. later. Okay, so 27 songs later, this album, which is so close to you, and many more songs. In fact, मैंने कितनी बार आपको कहा कि ये गाना मुझे, I'm still listening to it. But why is it that जब हम YouTube covers देखते हैं of any songs, और ये इंडिया में होता है, बाहर नहीं होता, देयर इज, अगर बियॉन्से का गाना आ रहा है तो बियॉन्से का गाना आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ होता है कि सुशांत सिंह राजपूत या कार्तिक आर्यन, संग बाय श्रेया घोषाल, कंपोज्ड बाय अमाल मलिक. We don't really give the credit to singers or composers the way it is given in the West. Why do you think it is? I think because यानी खुद ही एक एज अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री सबको कलेक्टिवली इस बात के लिए खड़ा रहना पड़ेगा ना। यानी इफ़ यू सी इवन नाउ आई थिंक सिंगर्स समवेयर स्टिल गेट इनफ ड्यू क्रेडिट। आप रेडियो पे सुनो तो मुझे नहीं लगता कोई कहता है हीरो का भी गाना नहीं बोलते रेडियो पे, बट दे ऑलवेज से कि अरिजीत सिंह का गाना है, या बोलते हैं उदित नारायण का गाना है, या अरमान मलिक का गाना है, या कुमार शानू की आवाज़ में। बट कंपोजर्स ऑन द हिंदी साइड एज अ कलेक्टिव हैव deteriorated themselves in terms of not standing up for their self respect। यानी आप कॉन्ट्रैक्ट में डालो या आप इस कंडीशन पे काम करो कि मुझे ड्यू क्रेडिट पोस्टर्स पे, बैनर्स पे, हर जगह जहाँ पे भी, यूट्यूब पे भी। यानी 2014 का साल था, आई थिंक 2014 में मैंने इंडिया के सबसे बड़े लेबल है टी सीरीज़, भूषण कुमार जी, उनसे यानी एक हेड टू हेड कॉन्वर्जेशन की कि सर मैं टाइटल में मेरा नाम आना चाहिए, और मेरी पूरी टीम जो 12-15 लोग हैं, जिसने गिटार बजाया, जिसने ड्रम्स बजाए, बेस बजाया, उन सबका नाम दीजिए। एंड आई चेंज द गेम फॉर अ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम देयर। आई थिंक अ लॉट ऑफ सीनियर म्यूजिशियंस टिल देन हैड नॉट गिवन क्रेडिट्स टू देयर साउंड प्रोड्यूसर्स या मिक्सिंग इंजीनियर्स। किसी का नाम नहीं आता था कहीं। मैंने भी बहुत सारों के साथ काम किया, बट मेरा भी कहीं नाम नहीं आता था। सो एज अ कम्युनिटी वी ऑल्सो, जब मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर था, हम लोग भी सोचते थे कहीं तो यानी कौन फिल्म के एंड क्रेडिट में रुक के देखता भी है कि ये गाना किसने किया, ये आर्ट डिज़ाइन किसने किया। सो यू हैव टू, जहाँ यानी आप इंस्टाग्राम पे भी मैं आज देखता हूँ कि एक्टर्स के आई थिंक उनको भी जो स्क्रिप्ट भेजते हैं, यानी कि ये उनके पास टाइम नहीं। आई एम नॉट सेइंग एक्टर्स जानबूझ के करते हैं, दे आर द फेस ऑफ द म्यूज़िक, दे आर द फेस ऑफ द सॉन्ग। अभी राजेश खन्ना जी गा रहे हैं, ये लगता है ऑडियंस को 20 साल से, उनको पता ही नहीं कि किशोर कुमार या मोहम्मद रफ़ी है। तो वो थोड़ा थोड़ा आज बदलने लगा है। नहीं, आई मीन ड्यू क्रेडिट टू यू दैट यू डिड दिस, बट एक्चुअली अगर आप देखें सो पहले बोलते थे ना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गाना है, या फिर नदीम श्रवण का गाना है, जो बीच में बंद हो गया था हमारा। वी वर नॉट, माय नेफ्यू वुड बी कॉलिंग इट्स अ कार्तिक आर्यन सॉन्ग. Yes. He wouldn't know that it's an Amal Malik song. Because I think more of the social media onslaught that came through, I think then levels changed. पहले it was like actor, singer, सब लोग उतने important। अब लहरे टीवी का जो आप म्यूजिक लॉन्चेस देखो, वहाँ क्या पेडेस्टल पे रखा गया है कंपोजर्स को या लिरिक्स राइटर्स को, समीर जी, अनु मलिक, नदीम श्रवण। That changed because heroes and heroines are like constantly in your face. They are constantly perhaps spoken about, written, paid promotion or non-paid. Media in its own understanding also started giving most of the limelight to them. And सबको नहीं आता यानी कि खुद के लिए कैसे स्टैंड ले कि, एंड इट समटाइम्स लुक्स ऑल्सो रॉन्ग कि आप हर जगह मेरा गाना है, मेरा गाना है, मेरा गाना है। सो वो एक चीज़ आई थिंक कंपोजर्स को नॉट जस्ट कि जाके कि एक पॉडकास्ट पे बोले कि मेरा गाना है। आई थिंक एज अ होल थिंग, इवन द म्यूजिक एसोसिएशन, द कंपोजर्स दैट आर देयर, द बिगर वंस हु आर सीनियर टू अस, आई थिंक इन लोग सबको स्टैंड लेना चाहिए। लाइक टुडे इट्स जस्ट स्टार्टेड कमिंग थ्रू कि मेट्रो के बाद यूर सीइंग कि अप्रीतम म्यूजिकल, you're seeing Anirudh and younger kids from the south get that credit 10 years before even
a man like Pritam. So I think it's more of the Hindi side that is less respectful than the South. But is it the industry? Is it the people themselves जो जिनमें ये confidence नहीं? Because you know जब आप ये बात करते हैं, just remembered, I have heard this that सलीम जावेद ने I think बहुत पहले जाके ये अपना नाम लिखवाया था. correct ये musicians क्यों नहीं करते? Because when I listen to a song, in fact I've messaged you that you know मुझे मौका मिला कोई अच्छी ऐसी फिल्म में मेरा क्रेडिट भूल जाए लोग तो मैं जाके लिख लूंगा. posters छपवाएंगे. हाँ यानी अभी पोस्टर्स का जमाना ही नहीं है. यानी एवरीथिंग इज सो डिजिटाइज्ड एंड एवरीथिंग इज सो इंस्टाग्रामेबल that you are only going to find it if you're going to deep search for it. People are not looking into even वो YouTube का आप click भी करो link आप लोग नीचे जाके I'm telling you I have met someone as knowledgeable and someone who's so educated and who knows everything like Shah Rukh Khan. That kind of person सब तो नहीं है ना, सब जाके ढूंढ रहे नहीं है. But even him, once he was also shocked. He gave me a reference of Suraj Duba and then I told him, I said, sir, मेरा ही गाना. He's like, क्या बात कर रहा है? And then he opened the credits. He's like, अरे हाँ. So वो एक सिंपल चीज़ है. वो सबसे बड़े सुपरस्टार को ही नहीं पता. अजय देवगन को ही नहीं अगर पता है कि अमल मलिक ने सोच ना सके अक्षय कुमार के लिए गया या मैंने सूरज डूबा रणबीर कपूर के लिए गया या शाहरुख खान सर नहीं जानते तो इंटरनली इंडस्ट्री को ही खबर नहीं तो पब्लिक कहाँ से जानेगी. सो एक्टर्स डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स कंपोजर्स ऑल हैव टू कम टू वन सेंट्रल अंडरस्टैंडिंग कि भाई हम सब इम्पोर्टेंट है. कोई किसी से बड़ा नहीं. ऑब्वियसली एक्टर सबसे बड़ा है नो डाउट क्योंकि उसके होने से ही गाने को वो नंबर्स वो व्यूज़ वो दुनिया मिलती है ऑफ एक्सेप्टेंस. बट अगर वो गाना बना ही नहीं होता अगर वो लिरिक्स लिखे ही नहीं होते अगर वो सिंगर ने गाया ही नहीं होता तो आप क्या कर रहे होते. सो इट्स दैट स्टोरी है ना द चिकन केम फर्स्ट और द एग. आई थिंक जावेद साहब सेड वेरी क्लियरली आई सेड कि जितने भी बड़े सुपरस्टार्स बने वो म्यूज़िक की वजह से ही बने. पहले गाना आया था फिर आप स्टार बने और उसके बाद आपके स्टारडम ने उस गानों को बड़ा बनाया. ट्रू बट ये हमारे यहाँ क्यों होता है दैट यू नो वी नीड अ स्टार टू मेक अ सॉन्ग लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट द वेस्ट. चलिए पंजाबी इंडस्ट्री में फिर भी ऐसा होता है कि भाई दिलजीत दोसांझ इज़ अ पॉप आइकन हिमसेल्फ. पर ये हिंदी इंडस्ट्री में क्यों नहीं हो पाता है? क्यों मुझे नहीं लगता कि एक सोनू निगम या श्रेया घोषाल किसी भी हद से सिंगिंग में कम है. टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस ऑफ प्लेबैक सिंगिंग टू सेल्फ वीडियो आर्टिस्ट सिंगिंग. वो एक यानी मैं खुद फीचर अगर स्टार्टिंग से हो रहा होता मेरे सब गानों में अगर सूरज डूबा मेरे ही चेहरे पे होता शायद इतना चलता नहीं. बट एक लेगेसी बनती गई है फॉर दिलजीत फॉर एमी विर्क जितने भी पंजाबी आर्टिस्ट इन लोग ने अपने पैदाइशी दिनों से ही जब से इन्होंने कदम रखा है म्यूज़िक में उन्होंने अपने चेहरे पे ही काम किया अपने फेस पे ही गाने डाले. कभी म्यूज़िक डाल के किसी हीरो को नहीं दिया. द फिल्म इंडस्ट्री द हिंदी साइड वर्क्स ऑन celebrating actors and cinema. Music is a part of it. We are not. Sonu Nigam may be bigger than Diljit Dosanjh on every level as a legend, but because there are no 25-30 songs of him on his face, and especially not in an era of the last 10-20 years, they're beyond that. 30-35 years पहले होगा when he must have done 30 years back. Yeah. अब मैं जानता हूँ आजकल का 16-year-old जानता नहीं बिजूरिया गाना एग्जिस्ट भी करता है. सो टुडे ऑल्सो इफ़ यू स्टार्ट इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट टुडे. दैट्स व्हाई आई टेल पीपल कि आज आपको ज़रूरी नहीं है कि आप फिल्म गाने से ही बनोगे. वो ड्रीम्स होती थी कि प्लेबैक सिंगर बनना है मेरे को शाहरुख खान के लिए गाना गाना है. ये सपने बहुत अच्छे हैं ये आज भी मैं दिल में रखता हूँ आज हर एक बच्चा रखता है. But it's important to start putting music on your face. I think that's what Punjab did better than us. So every star from there has a face value. We have a voice value. हम लोग का नाम है कि you know बहुत लोगों को अरिजीत का भी चेहरा नहीं पता. वो यहाँ से चल ले जाए ऑब्वियसली इतने कॉमन तरीके से भी रहता है नहीं जानते. बट इफ़ यू सी टुडे इफ़ यू से कि दिलजीत दोसांझ अगर पंजाबी साइड पे तो हिंदी साइड पे अरमान मलिक है. मेरे को नहीं लगता एक भी यानी उसको फेस वैल्यू पे जानते हैं. शायद गाने जाने ना जाने दे माइट फॉरगेट हिज म्यूजिक वाला देख के बोले अरे अरमान मलिक. सो दैट इज समथिंग सेल्फ बिल्ट. आई थिंक यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट एंड प्लेबैक जर्नी रखते हुए एक आर्टिस्ट जर्नी फेस म्यूजिक वीडियो आर्टिस्ट जर्नी बनानी ज़रूरी. देन ओनली इट विल हैपन. So you're saying that it's up to the artist to put that kind of money, to put that kind of... Fully. You have to invest on yourself. Okay. Then, I mean, you know, like these days, obviously Sunidhi is coming up with her music videos and obviously all of that. But एक टाइम ऐसा भी तो था हमारी इंडस्ट्री में जब लता जी थोड़ी ना म्यूजिक वीडियोस बना रही थी, आशा जी थोड़ी ना म्यूजिक वीडियोस बना रही थी. So where do you think this is getting confused or muddled up?
5 लोग थे, ठीक है, आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारलाल, एक टू अ पॉइंट, चलो थोड़ा पहले जाए तो मदन मोहन, शंकर जयकिशन, ऐसे हर एरा में 5 लोग ही थे. लता जी के साथ थोड़ा आगे पीछे में हर सिस्टर्स, और किशोर कुमार इज देयर, रफ़ी साहब इज देयर. 5 चुनिंदा गायक, 5 कंपोजर, 5 लिरिसिस्ट, 15 लोग में इंडस्ट्री थी. आज 20,000 कंपोजर है, 500 करोड़ सिंगर है, पता नहीं कितने लोग लिरिक्स लिखते हैं. तो हाउ विल यू कंपेयर दैट? द एरा इज ओनली डिफरेंट. आई थिंक वो एरा डिफरेंशिएशन है टुडे. बट आई वुड से समथिंग कि जैसे आप लता जी की बात कर रहे हो, इट्स अ लेगेसी आर्टिस्ट. अब लेगेसी आर्टिस्ट को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते. अब हमारे आज के लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल जी है, you will not see her even do 10 music videos, but she is in everyone's playlist, everyone's heart, everyone knows her by face. वो एक चीज़ मैं कहता हूँ तकदीर का खेल है. वो आप कभी कभी होता है आप 500 करोड़ डाल लो अपने काम पे, पर आप नहीं बनोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देर इज़ अ प्ले ऑफ फेट, एंड दैट इज़ समथिंग टुडे. फेट अलॉन्ग साइड वॉल्यूम, यानी आज 5 सिंगर नहीं है, 5 कंपोजर नहीं है, तो हाउ डू यू स्टैंड आउट? So that's the time, that's why today Sunidhi or everyone else, younger people also come in. If you see Jonita or you see someone, yeah, like Nikita, they're all doing music videos because playback में रह के भी, यानी Nikita is a friend, but even she understands कि after singing a Burj Khalifa or a Rabta or everything, there is no understanding that this is that girl. वो होगा सिर्फ ऐसे ही करने से. You have to do that today, क्योंकि everyone cannot be a Shreya. Everyone cannot, even Sunidhi is also right up there, but because she has that balance of being Gen Z in her looks, in her styling, in everything, she is relating to that audience. So that audience is understanding Sunidhi Chauhan, अच्छा ये भी है. So out of 10 young superstar girls, there may be one Sunidhi Chauhan who's a senior act, but she is relatable to Gen Z. सो आई थिंक वो आप कितना रिलेटेबल हो और कितना आप अपने कंटेंट पे काम करते हो, डालते रहते हो, वो दुनिया, इट्स ऑल अबाउट वॉल्यूम टुडे. And paparazzi. Paparazzi, volume and luck. Okay, so tell me something. Luck is definitely this time on your side. My side. What is your paparazzi budget or what is your media budget? नहीं है भाई. Seriously? कुछ भी नहीं है. गाने के रिलीज के आसपास रेडियो इंटरव्यूज होते हैं, थोड़ा बहुत PR होता है, जैसे यानी जो भी पब्लिकेशंस है उनके साथ करते. देयर इज नो hype budget at all. Obviously when you work with big labels, there is a budget that they bring onto your song, and it's a give and take. यानी अगर मैंने एक म्यूजिक वीडियो किया with T-Series, so I have done the music video and the audio and kept a product ready. मैंने वो मोहब्बत करके गाना किया featuring आमना शरीफ, very big song of mine, really went all out on the internet, and I have to give it to the label that they supported me 100%. एटलीस्ट उन्होंने उस गाने पे अपनी जान लगा दी. ऑलमोस्ट 30-35 lakhs का इन्वेस्टमेंट किया, वो चाहे रील्स हो, मार्केटिंग हो, यूट्यूब पे हो, हर जगह पे उन्होंने जान लगाई. तो वो एक बैलेंस, ऑब्वियसली एक बिगर लेबल का सपोर्ट आना. व्हेन यू सी माई सॉन्ग, व्हेन आई डू इट ऑन माई लेबल, ऑब्वियसली मेरे पास वो बजट नहीं है. माई बजट समवेयर इन वेयर आई अंडरस्टैंड दैट आई कैन स्पेंड, if I have to, maybe do a YouTube campaign, a Reels campaign, or spend on Spotify, anything to get banners, it is around 5 to 10 lakh rupees. But उससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है. किसी भी आर्टिस्ट की who is not, doing 100,000 shows, I don't think they can put more than this. यानी सब, but you have to, it's a time कि आपके पास 50,000 rupees भी है, आप डालिए. You decide कि मैं 50,000 में से 10,000 मीडिया बाइज कर लूँ. आई विल पे दीज पेजेस टू डू, और समटाइम्स आस्क मैसेज समवन लाइक यू कि चलो आई एम अ न्यू आर्टिस्ट बट आई हैव दिस म्यूजिक विच इज़ ब्लोइंग अप, आप सपोर्ट करो, मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाओ. यू हैव टू मेक दैट आर्टिस्टिक रोड मैप फॉर योर सेल्फ, कि अगर आप पैसे 5 और 500, ऑब्वियसली विजुअल ज़्यादा नंबर्स जिस पे पैसा डाला जाता है वो ज़्यादा दिखता है, नो डाउट, बट सही से धीरे 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 10 प्रोजेक्ट में आपने 50,000 भी खर्चे तो वो एक लेगेसी बनती जाएगी. 10 वीडियोस आपके बनेंगे, वो 10 वीडियो देख के आपकी फ़ैन फॉलोइंग बनेगी. सो इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू कीप ड्रॉपिंग थिंग्स एज अ न्यू आर्टिस्ट. आई एम टॉकिंग टू ऑल द न्यू आर्टिस्ट हियर बिकॉज दैट इज़ हु आई एम talking to and inspiring the next generation. They have to understand कि आपने
आप अगर 9 to 5 भी करते हैं, आपने पैसे बनाए और आपको आर्टिस्ट भी बनना है, तो आपको उस पैसों में से कुछ आर्टिस्ट्री पे, अपने फेस पे इन्वेस्ट करने के लिए डालना ही डालना है. आज का टाइम वैसा ही है. So you're saying it's not just the music जो आज आपको आगे लेके जा सकता है, you have to consider other things as well. Fully. Music is 60% of it. Is it true that substandard music या average music भी अगर well spent reels पे किया जाए और TikToks पे किया जाए तो हिट हो सकता है? बिल्कुल, बट वो मोमेंट्री हिट कहूँगा मैं. आई वुड से आप 3 से 6 महीने तक सुनोगे या आपको सुनाया जाएगा वो, बट आफ्टर दैट विल यू सेव इट, विल यू डाउनलोड इट और विल यू कीप इट इन वन ऑफ योर लाइक पर्सनल प्लेलिस्ट. आई थिंक वो जर्नी गाने की आज अगर होती है तो फिर मैं मानता हूँ कि हाँ स्टूपेंडस चला है ये गाना. बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ किड्स hear the song for 2 weeks, and I've seen like my cousins and nephews from mom's side and all, they listen to music and 2 हफ्ते बाद बोर हो गया यार, बस डिलीट कर देते गाना कि बस हो गया. सो कंज्यूम ऐसे हो जाता है आजकल कंटेंट या म्यूजिक भी कि वो वायरलिटी में दिख रहा है, हर जगह पे सुनाई दे रहा है और फिर सडनली आपको सुनना ही नहीं है. सो देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन यू वेर यू ओवर मार्केट ऑल्सो. आपने ज़्यादा प्रमोट कर दिया गाना तो लोग चिढ़ भी सकते हैं. देयर इज अ टाइम दैट कम्स कि अरे यार बंद करो यार वो गाना. खुद का कोई ऐसा गाना या खुद का कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जब आपको कि यार नहीं यार इतना कर दिया कि अभी वैसे मतलब बहुत ही ओवर मार्केट? नहीं, मेरा तो बहुत सही मार्केटिंग ही हुआ है. अंडर मार्केटेड प्रोजेक्ट? अंडर मार्केटेड तो बहुत ऐसे Which one comes to mind? देयर हैव बीन फिल्म्स ऑब्वियसली वेयर I would say a very very big song of mine, I would say कि indirectly I would say was fully wasted, was a movie called Veda, Nikhil Advani's movie. Great movie. Didn't make its mark, I don't know why. But Zarurat Se Zyada is a song that Arijit and Shreya sang for me, which I think 10 years down the line will be considered one of my immortal songs. यानी ऐसा उस फेज में हिट नहीं हुआ, बट आज खुद रील्स पे चल रहा है, आज खुद उसके नंबर्स बढ़ रहे हैं. सो आई थिंक ऐसी बहुत फिल्में रहती है. It's on media buying and banner buying and positioning and which studio is behind it. Abhi I cannot compare a Z studio budget to a Yashraj budget, a Dharma budget or a Nadyad wala budget. They will have X amount, they will have 3x, they will have 7x. So आप कौन सी फिल्म में आपका गाना कब आता है? यानी बड़े से बड़ा सिंगर अरिजीत सिंह का गाना, श्रेया घोषाल का गाना, अमल मलिक का गाना उतना नहीं चला जितना आज अरमान और मेरा एक म्यूजिक वीडियो चल गया. तो ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग हम लोग ने उनसे ज़्यादा की है. कभी कभी होता है वो किस एनवायरनमेंट में भी आया फिल्म, वो किस दौर में वो गाना रिलीज़ हुआ, लोगों का माइंडसेट भी क्या था उस टाइम पे कि 10 सुपर हिट डांस ट्रैक्स चल रहे होंगे और बीच में एक रोमांटिक गाना आया, या इट केम इन अ मंथ विच इज़ नॉट वेयर पीपल आर फीलिंग सॉम्बर और फीलिंग सेल्फ रिफ्लेक्टिव. इट मे नॉट वर्क. टाइमिंग ऑफ अ सॉन्ग ऑल्सो मैटर्स समटाइम्स. ऐसा नहीं है कि आप पंप करके सुपर हिट कर सकते हो हमेशा के लिए. वो कहीं ना कहीं पब्लिक भी पकड़ लेती है, अरे यार ये तो दिखा रहे हमें, बेच रहे. जहाँ बेचन हो जाता है ना पब्लिक कैचेस. बट नहीं, आजकल बेचन बहुत हो रहा है और आपने जैसे कहा कि करना भी पड़ता है. तो कमिंग बैक टू समथिंग दैट यू वर सेइंग दैट यू हैव टू पुट योरसेल्फ. इट्स बेचन औकात अनुसार, जिसकी जो औकात. बट हाउ डू यू बेचो योरसेल्फ? बिकॉज अभी आपने बात करी अबाउट अ लेबल जिसके साथ एक समय आपका रिलेशनशिप अच्छा भी नहीं था. यू टुक देम हेड ऑन एंड नाउ यू डूइंग हेड ऑन एवरी डे. इट्स लाइक अ वेरी स्टेप फादर स्टेप सन रिलेशनशिप. आई हैव टू एक्सप्लेन दिस. देयर इज नो पर्सनल एनिमोसिटी विद T series if you're talking about. Bhushan Kumar is completely responsible for Amal Malik to become Amal Malik. And I hope people take this line and understand that there is an understanding of business ethics and moral understanding जो differentiation हर एक इंसान में होती है. आज मेरे पापा के साथ जैसी लड़ाई हो जाती है, same, he is like an industry father to me. Salman Khan launched me, but Bhushan Kumar held my hand and took me to the biggest of movies, to the biggest of production houses, on belief कि ये लड़का करेगा. एंड मैंने आई थिंक एक रिलेशनशिप हमारी ऐसी है कि वो जानते हैं कि यानी किसी से नहीं होगा तो अमल से होगा. He has that at the back of his mind. Even when I did Mere Dholna, there was a point where he tried. By the way, sorry to cut you off. I love. You had messaged me. This man has sent me that Bhola Bhala reel 25,000 times in my DM. I mean, I just every time I listen to it, it's crazy. So sorry, you were saying about your relationship with Bhushan Kumar. It is. See, you have to understand. He is the biggest man in music. He is the biggest label of the country. एंड वो लिटरली चुन सकते कि आज ये स्टार है तो कल वो है.
Then what makes you take him head on? माई अंडरस्टैंडिंग कि मुझे म्यूजिक कैसे करना है. आई टेल हिम, मैं तो उनको सामने बोलता हूँ कि सर ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं होगा मुझसे. And he has no ego about it. He may have, obviously. If I am that big, even I will have an ego, and I don't blame him. But somewhere down the line, over the last 5-6 years, he has understood that the purest that I am and the magic that I want to leave behind, उसकी legacy ऐसी ही बनेगी. तो ये कहानी यानी खून से लिखी है, स्याही से आगे नहीं बढ़ेगी. So that understanding he gauged after long. First में तो बहुत यानी he was like shocked कि अरे तुम मेरे ये सब फिल्में नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं जो भी बना, जैसा भी बना, जितने लास्ट 10 years में मुझे एक पर्पल पैच कहूँगा ऑफ प्लेइंग एंड डूइंग माई म्यूजिक आई हैव गॉट, कि किसी के साथ नहीं होता कि आप आओ और 40 सुपर हिट दे दो. हुआ है मेरे साथ, यानी मुझसे ज़्यादा अगर टी सीरीज पे किसी ने सुपर डुपर हिट गाने दिए वो हिमेश सर है. ही हैज़ हैड लाइक अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ऑलमोस्ट 35 सुपर हिट सॉन्ग्स. आई थिंक 29 या 30 पे मेरी गाड़ी कहीं रुकी उनके साथ. बट अनस्टॉपेबल जर्नी रही साथ में. बट द मिनट इट कम्स टू एन अंडरस्टैंडिंग कि आशिक बना आपने, मसक कली और ऐसे गाने रीमेक करने, तो वो मैं नहीं कर सकता, मुझे करने ही नहीं. तो वो मैं क्यों करूँ? मैंने इतने प्यार से मेरी एक लेगेसी, सरदार मलिक की लेगेसी, अन्नू मलिक की लेगेसी, डब्बू मलिक की लेगेसी, ये दोनों भाई इतने अच्छे से आगे ले जा रहे हैं. वाई डू वी वॉन्ट द ब्रेक बैक्स ऑफ द पब्लिक एंड फॉर नो फॉल्ट ऑफ आस? यानी हम क्यों करें? इतने म्यूजिशियंस हैं, इतने डीजेज हैं, इतने रीमिक्स करने वाले लोग हैं, आप करा सकते हो किसी से भी. और उन्होंने किया. मेरे रुक जाने से अभी लेबल थोड़ी रुकेगा. ये अंडरस्टैंडिंग मुझे भी थी. जब मैंने उनका हाथ छोड़ा तो उन्होंने भी मेरा हाथ छोड़ा कि अरे भाई मैं तो करूँगा. But you were not scared. My parents were, friends were, everyone was. I was a little skeptical कि यानी दो माइंड में तो मैं भी था कि अरे भाई बड़ी पिक्चरें छोड़ रहे. बट आई थिंक माई फैंस एंड the audience celebrated me even more. They made my music so popular in those years that I didn't do movies. Like 19 was the last year. Chale Aana is my biggest song with Bhushan Ji. It is about 1 billion streams. Then I did Kabir Singh also. If I have to even give a number understanding, my one song from De De Pyar De has the same number of streams that the entire soundtrack of Kabir Singh has. So that is what my relationship, I would say, with Bhushan Kumar is. We are so lucky for each other that जब साथ में आते हैं यानी आग लगा देते हैं. But what gave you the confidence at such a young age that I can take on someone like T Series? Because कई रेडियो स्टेशंस तक घबराते हैं उनके गाने बस जबरदस्ती बजाने के लिए. बट मेरे लिए वो दिल में एक सॉफ्ट स्पॉट भी रखते हैं. वो मुझसे प्यार भी करते हैं. ऐसा उनको यानी वो आसपास वाले अंडरस्टैंड. व्हेन अ मैन इज वेरी बिग, there'll be 4-5 people around him who will poison him, who will say things to him, whether it's a hero, a label head, a producer. तो वो 4-5 जो लोग हैं उन लोग फीड करते होंगे. बट कहीं ना कहीं इंसान की जब सेल्फ वो अकेले घर पे रहते होंगे या सुनते होंगे कि अरे अमल ने फिल्म छोड़ी, सही रीज़न से छोड़ी. और मैंने कभी भी उनको डिसरिस्पेक्टफुली ये नहीं बोला कि जा नहीं करनी है पिक्चर है, ऐसा कभी वो नहीं है. इट इज़ ऑलवेज बिन लाइक सर मैं सही नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, मुझसे नहीं होगा. या ये जो 2 दिन में और हेल्थ फैक्टर्स भी बहुत थे. फॉर हिम आई हैव बीन लाइक अ वॉर हॉर्स फॉर 6 years एट दिस पॉइंट. यानी 2020 से थोड़ा पहले मैंने ये ब्रेक ले लिया कि 2014 to 20 यू विल सी एवरी सेकेंड फिल्म हैव माई म्यूजिक. बट खर्च हो जाता है ना आदमी, कितना ही करे. और मेरे कोई 25 असिस्टेंट नहीं है. मैं कोई गाने आउटसोर्स करके 5 लोगों से गाने लेके अपने नाम पे नहीं डाल रहा. हाँ, मैंने ये भी सुना है कि ऐसा भी होता है. पूरी इंडस्ट्री में ऐसा भी होता है 100 लोगों से. एंड इट्स नॉट रॉन्ग. इट्स लाइक सम पीपल वर्क ऑन अ फैक्ट्री फॉर्मेट, सम पीपल वर्क ऑन अ लेगेसी फॉर्मेट. You haven't done it. आई एम समवन हु इज मेकिंग अ लेगेसी. यू विल रिमेंबर मी फॉर द मैजिक आई एम हियर टू मेक. मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है. मैं अभी 35 साल का हुआ हूँ. इस उम्र पे आके लोग म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं. मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो बन चुका हूँ. तो प्रॉब्लम क्या है? करेंगे आराम से. That's very sweet. I have unruffled feathers, yes, but only for good intent. अगर उनकी इंटेंट सही है, मेरी इंटेंट सही है, मैच हो रही है, पैसे नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए, बड़ी फिल्म भी नहीं चाहिए. आप अच्छा काम करना चाहते हो और मुझे करने दोगे तो मैं करूँगा. What is your astrological sign, zodiac sign?
आई एम जेमिनाई बट आई बिलीव आई एम लियो. जेमिनाई पे इतने पंगे लेते नहीं है वैसे. हाँ, वो थोड़े दोनों तरफ रहते हैं. Yeah, no, but you have. I mean, in your journey, I've always seen that you've stood for your opinions whenever you've had one. जैसे आपने उनको ना बोली थी, ऐसे कभी आपको कोई ना मिली है जिसने शायद दिल पे धक्का दिया हो कभी, मे बी पर्सनली और मे बी प्रोफेशनली? डकोटा जॉनसन को छोड़ के. डकोटा जॉनसन अभी पढ़ ले तो अच्छी बात है. फायदे में रहेगी वो. And you know that crushed you. आई थिंक इट नॉट क्रश्ड मी. आई थिंक ये चीज़ पर्सनली तो भाई वो तो होते ही है. आई हैव हैड 2-3 रिलेशनशिप्स विच डिडंट वर्क आउट. सीरियस रिलेशनशिप्स 5-5 साल के. सो वहाँ ऑब्वियसली ना नहीं, यानी जब टूटते हैं रिश्ते तब तो Are ऑब्वियसली. you emotional? ब्रो गाने सुन लो आपको पता चल जाएगा सब इमोशनली है. हाँ, मतलब दिल तोड़ने वाला आशिक. कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता अच्छा, हूँ. ये किसी के लिए बनाया गया था? सब गाने किसी के लिए ही बने हैं. एक या अलग अलग है? मैं बोल कहा है ना 3 रिश्ते थे. 10 साल में 3 रिश्ते नहीं थे. आप 16 साल की उम्र से लेके, यानी माई फर्स्ट रिलेशनशिप वॉज अराउंड 18 एंड द लास्ट वॉज एट अराउंड 27. सो अभी 7 साल का वनवास तो हो गया है. वाह. तो अभी 7 साल में क्यों नहीं कुछ? 7 समंदर पार मैं आपके पास आया हूँ. तो मैंने काम पे इतना ध्यान दिया कि आई थिंक दैट जर्नी ऑफ फ्रॉम बीइंग अमल टू अमल मलिक हैपेंड इन द लास्ट 7-8 years. सो ना लेफ्ट देखा ना राइट, ऐसे ब्लिंकर्स ऑन रख के आई जस्ट मूव्ड ऑन लाइक डूइंग माई थिंग. But I But want to ask. work-wise, there have been times, if you say that professionally, there have been things like there have been no's on many occasions. Really? And I have been okay with it. I would want to say that you should be okay with it. Like there will be times I will send 5 songs to Arijit and he'll not like any of them. There will be 2 songs that I'll send to Shreya and she may not like one, which I really love. Sorry, but you still have to send songs to singers for them to approve. Surely, when you're on that level, even someone like Sonu ji, when you've done a credible body of work, आज मैं अगर भूषण जी को ना बोल सकता तो अरिजीत सिंह मुझे क्यों नहीं ना बोल सकता. सिंपल है ना. उसके लाइफ में अगर उसने 500 ऐसे गाने कर लिए और उसको कुछ नया दिखाने का मौका ही नहीं मिल रहा तो वो नहीं करेगा. और ऐसा श्रेया जी में भी है, सुनिधि में भी होगा, सोनू निगम, दे ऑल आर एंड ही इज़ राइट अप देयर टुडे. सो टुडे इट इज़ पॉसिबल फॉर हिम to say no to not just me, to even an A.R. Rahman. He may do it once or twice out of respect, but वो एक reluctancy हर artist में होती है कि मुझे कुछ नया करना है, नहीं तो नहीं करना है. So there have been times when I have sent songs to the singers. There have been songs which I 100% believe कि ये producer या director लेगा ही लेगा और नहीं लिया. But that is how the industry works. Sometimes it happens, sometimes it doesn't. It's a hit and miss place. ऐसा कुछ हुआ है कि किसी ने मना किया हो फिर वो गाना बहुत बड़ा हिट हो गया and you felt vindicated? बहुत बार. सूरज डूबा is one of them. Almost 30-40 people said ये क्या बकवास है. फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट था when मैं रहूँ या ना रहूँ, which is my most immortal work. यानी मुझे बोला था बहुत फिल्म प्रोड्यूसर्स ने कि ये किस ज़माने का म्यूज़िक बना रहे हो यार, हम कहाँ पहुँच गए, तुम कहाँ जा रहे हो. तो जब वो चला और वो ऐसा चला तो यानी आज वही प्रोड्यूसर्स आके बोलते हैं वैसा गाना दे दो. तो यानी मैं मन ही मन हंसता हूँ, बोला आपको पहले सुनाया था आपने समझा नहीं. सो ऐसा बहुत होता है. देयर हैव बीन टाइम्स दैट आई हैव गिवन अ सॉन्ग टू मे बी यू इफ यू आर द डायरेक्टर ऑफ मूवी एंड यू हैव कंप्लीटली रिजेक्टेड इट एंड इट्स गॉन आउटसाइड एंड डन स्टुपेंडसली वेल. ऐसा बहुत होता है. इवन अ सॉन्ग लाइक मैं हूँ हीरो तेरा, व्हेन ओनली सलमान खान वाज द वन हू बिलीव्ड. यानी मुझे ही बिलीव. He has a very good musical sense, I've heard. Terrific. I think his understanding. See, music is something that is subjective for the stars. If you see what शाहरुख खान पे चलेगा वो शायद सलमान खान पे ना चले. या इन दोनों पे जो चले वो शायद अक्षय कुमार पे बिल्कुल ना चले. So it is very subjective to them, their audience. यानी they know what works on them. तो सलमान खान has a good sense? Completely. I think he has an understanding कि बॉस मेरे पे ये चलता है and if it's new he will take time. He understands melody. Lyrics and all is something that he is ready to work with. Even in Hero he is the person who wrote that line, किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो तेरा. Salman Khan wrote it? Yes. Wow. He came through and said कि I don't want it to be a song says कि हाँ मैं बॉस मैं हीरो हूँ. I want to say कि मैं किस हक से तुझे कह दूँ कि मैं तेरा हीरो हूँ. So that input came from him. So it's years of understanding of who you are, what this place is और audience क्या चाहती है. और किसी को नहीं. निखिल सर was not sure. The actors तो obviously new थे, उन लोग को they were not involved in the music process. सुभाष घाई जी was like ये कहाँ जाके, उन्होंने भी सुना बोला अच्छा है
बट वेयर विल दिस कम्पीट विथ तू मेरा जानू है, कहाँ लेजेंडरी वो तुम क्या बना रहे हो। उन्होंने भी बोला, तो मैं सलमान सर के पास जाके हाथ जोड़े, बोला मेरे को करनी नहीं पिक्चर, ये इन लोग सबको नहीं पसंद, आपको क्यों पसंद है ये गाना, आप क्यों डाल रहे हो। एंड ही लुक्ड एट मी सेड आई बिलीव दैट दिस विल चेंज एवरीथिंग, और ये वो गाना है। And I was like, ठीक है, और वो इतना पसंद आया कि खुद गाया भी एक वर्जन, which rarely, like he'll not jump on to sing any other. He himself said. He had to also. यानी मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि मुझे गवाओ. Till the trailer came and became a super hit. The song in the trailer in Arman's voice became a hit right there. But there was so much negativity behind Suraj for all the reasons of his relationship and everything, that the film was getting completely negative. So the biggest man of the film had to stand, do a BTS kind of video. And I think वो सब जो childlike moments, वो चश्मा निकालते हैं and he's playing around with headphones and singing, I think अगर सलमान खान had not sung that, वो फिल्म कहीं ना कहीं यानी उतनी भी नहीं देखी जाती जितनी देखी गई. He had to step in, you know, he called me one night and he said, you know, I think I'll have to do something. I don't know how much it will work, but see if you can come and record me on this. And मैंने सीख लिया, मैं तैयार हूँ, मैंने रिहर्स कर लिया है, मुझे रिकॉर्ड करो इस गाने पे. And obviously he understands the process and it's not going to be easy to make him sing, but he gave his heart. He did his best, and I think the song is I'm going to that bring you big back to because you of it. giving your heart. You know, हमने ये तो पता लगा लिया कि बहुत सारे गाने आपने अपने ब्रेकअप्स के हिसाब से लिखे हैं, बट यू नो ये मैंने सुना है कि म्यूजिशियंस पे लड़कियों को कुछ खास प्यार आता है. मतलब लड़के ने गिटार का ट्रंग किया नहीं कि ये याद रखना, ट्रंग गिटार के पे ज्यादा प्यार आता है, पियानो पे थोड़ा कम प्यार आता है. ऐसा? हाँ, मैंने हमेशा देखा है. अरमान ने जब गिटार उठाया, 10 लड़कियां वहां गए, मैंने जब पियानो बजाया, मेरे को कोई नहीं था मेरे पीछे. ये मतलब girls like boys who play the Arman has guitar. been getting more girls than you. Arman's more prettier. I think he's a little more handsome. I think he's got that cute boy next door kind of. मुझसे थोड़ा बहुत एक डर का माहौल भी हो जाता है. यानी लड़कियों को, लड़कों को, सबको है कि भाई इससे कैसे बात करें. हो जाता है कभी. What are you doing to scare people? Nothing. My aura is intimidating. I have a soft heart. I'm very simple and nice about it. But there is something in my personality which makes people think twice before approaching or talking to me. But honestly, I don't agree. Like, you know, all my interactions with you have been really sweet. So But you're a darling, right? So now that also is a Thank difference. वो आप कैसे वो यानी ये बॉन्ड हम लोग 3 बार मिले होंगे, but it feels like. But I genuinely want to ask you that तो फिर ऐसा क्या गलत कर रहे हो तुम जो लड़कियां मतलब डर जाती हैं? I think मैं सही कर रहा हूँ. मेरे को लड़कियां Instagram पे फॉलो करे, मैं वहीं खुश हूँ. DMs आते हैं वैसे रिस्की वाले? पता नहीं भाई, इतने आते हैं कि मेरे को कि सर मैं आपका गिटार बनना चाहती हूँ. गिटार बनना है, भोला भाला हूँ, सीधा साधा हूँ. नहीं, ऐसा तो नहीं है. So Instagram. So no, honestly, I want to ask you that, you know, Instagram की बात हो ही गई है. आपके Instagram की स्टोरीज से बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स निकल जाते हैं. फिर आपको क्लैरिफाई अभी बहुत सारे चल रहे हैं पिछले 2 महीने से. No, but I want to ask you about that thing that, you know, दो आपकी स्टोरीज की वजह से बहुत सारे आर्टिकल्स आ गए थे. Do you think it was blown out of proportion? And also I want to ask you that what was the need for you if you want, like, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अपनी कोई भी इमोशन, see I've gone through depression before I entered Big Boss. Honestly, I realized that अगर आप बता दो कि मुझे डिप्रेशन है या मेरे घर में कुछ इशू, कुछ भी, people blow it out of proportion. Did you know it that आपके साथ भी ऐसा होगा when you spoke about your family? Obviously ऐसा back of the mind तो है कि we are famous as a family. It's so many years of this family being in music, almost 60 years, 70 years, and me being the biggest, eldest son of the family, coming out like that and saying that. I think it was not just the understanding. A lot of factors in my life, even after the death of my dog, made me realize that there is so many pent up emotions जो उसके बाद निकलने लगे. You know, when I lost him, I think I lost a big piece of me, and that was a very difficult time. And that was a time when I actually also was quite close to falling in love with someone. And that didn't work out. Then there were too many misunderstandings with parents. यानी जो अभी एक्चुअली मेरे पोस्ट डालने के बाद मेरी फैमिली और मैं और स्ट्रॉन्ग हो गए.
We got more closer. And my parents are not very good at handling the media. उन्हें नहीं पता क्या बोलना. Dad still is little, he can be like, he can understand and approach questions. Yes. मम्मी को सबने इतना फ़ोन कर दिया था ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन आई सेड दैट आई एम गोइंग थ्रू दिस डिप्रेशन एंड आई एम कीपिंग अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद माय फैमिली फॉर अ वाइल टिल दे डोंट अंडरस्टैंड वेयर आई एम एट. सो उन्होंने कुछ बोला तो मीडिया ने कुछ और ही बना लिया. एंड तो वो आई थिंक क्लिक बेट ज़्यादा है. बहुत सारे लोगों को मज़ा आता है कि मैं क्या किसी ने भी x का उसको 3x करके दिखाना. बट यू हैव टू गेट यूज टू दैट इफ़ यू आर फेमस एंड इफ़ यू आर अ सेलिब्रिटी एंड यू आर इन द पब्लिक आई. तो वो होना ही है. बट आई थिंक माई कमिंग आउट देयर ऑन सोशल मीडिया मेड माई पेरेंट्स अंडरस्टैंड हाउ ग्रेवली थिंग्स आर अफेक्टेड मी, हाउ अलोन he is feeling, and because I stay away from them. We stay separately. Most of the times I have to stay away from family because my hours of working are different. My style of working is different from both father and my brother. And there is no 9 to 5 understanding. It is more 5 to 9 a.m. I start making music at 5 in the evening and it's on till 7, 8, 9 in the morning. So I have never let anything come between me and संगीत. यानी इतना मैं म्यूज़िक का हूँ कि कभी कभी मेरे वो जो 5 दोस्त थे आज भी है बचपन के, यानी 5-7 दोस्त हैं, वो भी कभी अगर मेरे म्यूज़िकलिटी को अफेक्ट कर जाते हैं या मेरा प्रोसेस के बीच में आ जाता है, उन लोगों को भी मैं 10 दिन बोलता हूँ अभी नहाना नहीं भाई घर पे. पापा मम्मी को बोलता डोंट कम होम फॉर दीज 2-3 days. आई एम वर्किंग ऑन दिस ब्रीफ दैट आई नीड अलोन टाइम. सो कभी कभी वो समझते हैं, कभी कभी उनको लगता है क्या हो रहा है, हमें मिल रहा नहीं है. दे ऑल्सो ईगर टू नो लाइफ में क्या हो रहा है, कौन सी फिल्म साइन की, वो क्यों छोड़ी, ये क्यों बोला, अच्छा इसके साथ ये ऐसा क्यों हो गया. सो पेरेंट्स सी इट फ्रॉम अ वेरी ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू. समटाइम्स दे कैन बी राइट, sometimes they can be wrong. I think what my dad said very beautifully recently, he came and told me also, and he said it in some podcast also, that कि हम भी तो पहली बार पेरेंट्स बने. हमारा पहला बेटा तो हमारा ट्रायल बॉल है. so he's like, how do we know how to be great parents in the first time? We also don't know. नहीं, पर एक्चुअली मैं वही जब आया भी था मैं यही देख रहा था कि किसके घर में नहीं होते हैं आर्ग्यूमेंट्स. प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़े होते हैं, खाने के ऊपर झगड़े होते हैं. बट व्हेन इट ब्लोज आउट इनटू इट टू बी, क्या वो बाद में भी फिर इम्पैक्ट करता रहता है? बिकॉज लाइक नाउ व्हेन यू सेड ओ अमाल सॉरी अरमान इज क्यूटर एंड ऑल, एंड माय हेड वाज लाइक अच्छा आर दे ओके नाउ टुगेदर? डज इट पीपल थिंक कि भाई दोनों भाइयों में वो कंपटीशन है. एक्चुअली दोनों भाइयों में इतना प्यार है एंड टचवुड देयर इज हेल्दी कंपटीशन तो है कि मेरा सिंगल और उसका सिंगल अगर साथ में के रिलीज हो रहा है दोनों म्यूजिक वीडियोस, तो हम लोग मैं बोला देख मेरा ट्रैक ज़्यादा हो रहा है. ये तो होता ही है. कभी कभी देयर आर सॉन्ग्स दैट ही डज विद अदर कंपोजर्स एंड दे डू रियली वेल एंड आई एम लाइक अच्छा मेरे गाने से आगे तुम लोग दोनों का गाना गया है. सो देयर इज़ दैट फन बैंटर. बट देयर इज़ क्या है ना, पेरेंट्स का प्यार नहीं कहूँगा बट एक्सपेक्टेशंस दोनों से. यानी जब 2 बच्चे होते हैं कहीं भी मैंने देखे मेरे, तो मेरे जितने भी दोस्त हैं सब बड़े भाई है अपने घर के. सबके छोटों वालों की शादी हो गई, वो सेटल्ड है, उन लोग की अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ थोड़ी ज़्यादा मैच्योर है. हम लोग से जो 5-6 साल छोटे हैं या 10 साल छोटे हैं, उन लोग आजकल ज़्यादा आउट से इन अ फनी में बुढ़ा गए. उन लोग ज़्यादा प्लानिंग करके अपनी ज़िंदगी जीने लगे. जो मेरे लाइफ में यानी आई नो माई फाइनेंसेस, आई नो वेयर आई स्टैंड, आई नो वेयर माई मनी इज़, आई नो वेयर द नेक्स्ट 2 years will be, 3 years will be, but that's how much I want to know. My parents want me to know the next 10 years. ऐसा मैं नहीं जीता. ये बड़े बड़े से बच्चों पे हमेशा ज़्यादा कुछ तलवार गिरती है ना. हाँ हमेशा, है ना, बिल्कुल. Their expectations are like भाई सब सही करना चाहिए बड़े वाले को. Somebody who I'm somebody who has very openly spoken about my ADHD or about my depression, clinical depression and all. ये शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत suddenly headlines बनते हैं. यही लिखा गया हर जगह, clinically depressed and has problems with brother, जबकि ऐसा नहीं था. What I want to understand is at this juncture, how are you doing? Are you in a good space? Are you in a bad space? Yeah, it is a constant work. It is a constant work because I would say because of being in such an industry, it is difficult. It can get taxing because there is daily rejection, there is random acceptance, then there's again rejection. But personally, I would say I have healed much, much more than I have in the last 20-25 years. I think the last 10 years have overall, now when I sit back and take
account of where life has been after the whole decade of seeing the stardom of music and success and awards and everything, कि my family is very close to me today, and me coming out and opening up and saying those things actually made them come home. यानी मैंने एक हफ्ता तो सबको बोला था, मम्मी पापा को भी 10 दिन बोला कि मैं मैसेज पे बात करूँगा, मुझे अभी रहने दो. But on the 10th 11th day when I was ready to speak, both came home, sat for 6-7 hours with me to understand कि क्या है मन में. वो नहीं होता अगर मैं पब्लिकली नहीं बोल देता वो बात. और मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसी चीज़ों से यानी लोग यंगर बच्चे भी सीखे और नहीं डरे कि भाई अंदर रखते 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 आप अपनी जान ले लोगे. उससे अच्छा यू से इट. वो 2 दिन में लोग लिखेंगे 100 बातें, मीडिया लिखेगी, फिर 15 दिन बाद उनको कोई और टॉपिक मिल जाए. सो स्क्रू दैट, यू से व्हाट यू वांट टू से. एंड सम में फील कि हाँ, ही इज थ्रोन हिज फैमिली अंडर द बस, गॉन अगेंस्ट देम. बट कोई भी फैमिली आइडियल लगती है, होती नहीं है. सब में देयर इज अ चिंक इन द आर्मर, एंड दैट्स फाइन मैन. एंड I know maybe there can be a chance that you can maybe pick up the phone and tell your dad that कि ये हो रहा है मेरे साथ. But because it was not possible, and because I was in 1,000 songs and so many things happening with my life, doing shows, traveling, not a moment to even understand, take stock of life कि मैं आज घर आया, मेरे को पता ही नहीं मैं घर आया हूँ. कभी कभी दुबई आता तो लगता है यारी रोड पहुँच गए, कभी यारी रोड पहुँच के लगता है उठे और अच्छा कल ही तो दुबई में थे या कहीं और थे. So I'm also getting used to the travel life. I'm a studio kid. I lived like Batman in my cave. So for me to be out there in the world, experience these things, come back home and not have an understanding with my parents used to bother me. But now they completely have been like, तू जो बोले, तू जैसा है, जैसा तुझे रहना है, we are with you. So I'm glad that they have understood that. Do you think that it is important for someone like us, I would say, क्योंकि mental health I have also gone through and all, थोड़े समय के बाद हमें ना थोड़ा सा बेशरम बन जाना पड़ता है to face the world, and we have to kind of not just for ourselves but for a Mantu sitting in कानपुर जिसको आपकी स्टोरी इंस्पायर कर सकती है, आपको थोड़ा हार्शली पब्लिक क्रिटिसिज्म लेना शुरू कर देना पड़ता है. बिल्कुल. यानी आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स द सेम इफ यू आर इन द पब्लिक आई एंड इवन इफ यू आर नॉट. यानी वो ऐसा होता है कि आप जो स्मॉल टाउन में बैठे हैं या छोटे छोटे बड़े बड़े फैमिलीज यानी जॉइंट फैमिलीज में भी ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं अरे तुम्हारे चाचा का बेटा ये कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो. वहाँ पे भी बच्चा बिखर जाता है. सो वो कंपैरिजन्स जो करने लगते हैं फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स किसी और के जर्नी से, वो कहीं ना कहीं हर एक इंसान को अफेक्ट करता है. नाउ इट हैपन्स मोर व्हेन यू आर in this position where I am, or anyone who's celebrated and in the public eye, they go through it more. जैसे आपने बोला अभी कि एक सिंगर का गाना है या एक्टर का गाना है, वो कहीं ना कहीं इनिशियली मुझे भी 23-24 साल की उम्र में लगता था अरे पूरी मेहनत में करता पर गाने हीरो के हो जाते, सिंगर के हो जाते. विद टाइम यू ऑल्सो स्टार्ट रियलाइजिंग कि दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड दिस इज़ हाउ इट हैज़ बिन. यू हैव टू ऑब्वियसली गिव दैट फाइट योर सेल्फ. संघर्ष है, लड़ाई है, मुश्किल है, बट आवाज़ उठानी ज़रूरी है. तो वो मैंने उठाई और कहीं ना कहीं आई थिंक I have made people take notice of composers in my era, and I have made people understand that, and it's musicians who go through depression the most, I think, in our industry. Yani actors, rejection happens on a Friday, they're back on another Friday, and there is PR, there is 3 signed advertisement deals, brand deals, ये वो appearances, सब कुछ है. Musician इतना अकेला होता है anyway, ये आप समझ ही नहीं सकते. यानी उनके लाइफ में when depression hits, it is so difficult to fight back. I am grateful to God and obviously to my parents because they have also made me into a sturdy individual. मैंने मेरे डैड की स्ट्रगल्स और अन्नू अंकल की स्ट्रगल्स इतनी देखी है and so much they have taken on themselves and not let it affect them कि कहीं ना कहीं मुझे भी वो आर्ट आ गया है. यानी मैं 2019 से लेके अब तक ऑलमोस्ट 40-50 फिल्म से मैं 30 फिल्म से खुद निकला हूँ, 25 फिल्मों से निकाला गया हूँ, बट मुझे नहीं अफेक्ट हुआ. मुझे यानी मेरे फैंस को हुआ होगा या लिसनर्स को हुआ होगा, बट इट इज़ नॉट मेड माई साइकी गो लाइक ओके आई डोंट नो माई म्यूजिक, ओके इट डजंट मेक मी थिंक कि अच्छा मैं ख़राब हूँ. इट हैज़ ऑलवेज स्ट्रेंथन मी कि आई टुक दिस डिसीजन एंड दिस इज़ वेयर आई एम गोइंग टू बी आफ्टर दैट डिसीजन. ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी पड़ेगी. आप मंटू बैठे हो कानपुर में, वहाँ पे भी आपको रियलाइज करना पड़ेगा भाई आपके लिए आपको ही सोचना पड़ेगा और कोई नहीं आएगा. बट यू हैव थॉट अबाउट
other people, and before we end, I want to ask you about this thing that I read somewhere that you've spoken about Kartik Aaryan also, and you thought Yeah. about him. You did say that whatever happened to Sushant could Yeah. have happened to Kartik. At Sushant's time also, nobody was talking about mental health, depression. An actor could not, a star could not. Do you really It think... was not easy to be outspoken when we were doing all this. Like, But do you think I was Kartik Aaryan has I was- gone through similar I was situations? still talking about these things in 2014 also. ये podcast culture आ जाए तो we are talking here. But I have always voiced my feelings and what good, bad, ugly the industry has been. And it is important. What do you say about Kartik Aaryan? See, obviously I have been more closer to Sushant. And हम लोग दोनों की life एक point थी, MS धोनी. हम लोग ऐसे ही एक रूम में बैठे थे, डार्कनेस थी, एडिट देखा फिल्म का फाइनल कट, और दोनों ने एक दूसरे को देखा, डायरेक्टर थे, सब लोग थे, एंड देयर वाज अ स्पार्कल इन हिज आई एंड माय कि यहाँ से गेम चेंज है, यहाँ से लाइफ बदलेगी. एंड लिटरली मेरे लिए लाइफ वहाँ से बदली. I was suddenly considered in the league of greats. And MS Dhoni, the soundtrack made it into the top 100 albums also of Bollywood. There's a blog about it where they said Yes. the best 100 albums made, it makes its space. It is. Whatever number it is, I don't know. But if that happened for me, that was magical. Kahin na kahin, his journey started taking a different turn. His films, I think, were not supported well. He was not promoted well. बहुत सारा काम करके भी वो अधूरा रह गया. जहाँ उनका काम बेहतरीन था, बट वो फिल्में वैसी नहीं चली. एंड बिकॉज heroes and heroines are so much in the public eye more than us, obviously, and family being afar, being alone in the city, it can get to you. And we somewhere feel very connected to this human being called Sushant Singh Rajput, क्योंकि वो एक ही था जो कहीं ना कहीं, and I think he's another यानी he didn't reach there because life cut it short, but he had the same journey and the same fight that even a Shah Rukh Khan had. Yeah. Completely coming out as a sore thumb, coming and like rampaging the industry with talent. And जहाँ जहाँ उनको अच्छे लोग मिले उन्होंने अच्छा काम किया, जहाँ रैंडम काम मिला वहाँ पे भी 100% दिया. But this is an alone industry. This is a very lonely place. If you do not have the support of a few good friends and family, it can be a very screwed up place. That's why I'm asking you. मेरा एक podcast आया I don't था. know Karthik's journey like that, but if you see it from afar and But you have had any interaction with him where he said this, or it was your feeling? आप पूछ लो उनको, वो खुद बताएंगे आपको. He will tell you what he must have been through. But I have seen from प्यार का पंचनामा to सोनू की टीटू, and from there the reception to this man has been like he's arrived. You know, उससे पहले उनके साथ जो ट्रीटमेंट होता था या अभी जो होता है obviously must be different. But there have been, you've seen so many blind items against him. You've seen so many things trying to be mudslinging against the guy. And there is a fight that he also has to, I think, put in. Have you faced a fight like that? I face it every day. I think people think कि मेरे लिए बहुत advantages रहा है, being this industry kid, and people say कि भाई nepotism से बने दोनों भाई है, ये वैसा. हम दोनों भाइयों को तो on a daily basis target करने की कोशिश करते लोग. Organized तरीके से होता है या somebody powerful you ruffle and then फिर होता है ऐसा? I think everyone powerful in this industry is unfortunately they feel ruffled by any small thing. There can be something which you must have done, you don't even bloody know कि भाई मैंने ये किया और उससे उस आदमी को, उसके किसी दोस्त को, उसके भाई को, किसी को बुरा लग गया. It's possible. There have been times when I've said कि I've given back a nomination of mine and that producer may have felt bad. और I've said कि ये picture में मैंने कोई गाना किया था और मैंने बहुत ख़राब काम किया. मैंने एक इंटरव्यू में बोल दिया था कि ये आई डोंट रिलेट टू दिस वर्क ऑफ माइन विच वॉज अ रीमिक्स ऑफ गुलाबी आंखें. एंड आई वाज लाइक, मैंने वो डाला ही नहीं था. मैंने बोला कहाँ से आ गया इसमें, ये मैनिपुलेट करके कुछ भी रिलीज हो गया है गाना. सो देर आर टाइम्स व्हेन आई हैव टेकन अ स्टैंड एंड टेकिंग दो स्टैंड्स हैज़ मेड ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल बी लाइक अरे यार ये बहुत बोलता है, अरे यार इसको मत काम दो, अरे इसको काटो. और ये कहीं ना कहीं स्मॉलेस्ट लेवल से बड़े लेवल तक भी है. देयर कैन बी एन असिस्टेंट डायरेक्टर हु विल गो एंड पॉइजन अ डायरेक्टर. There can be an EP who will go and tell someone else. There can be a producer who will go and tell a label like T-Series or Saregama कि अरे यार, let's get this boy out. You've lost work because of that? Fully. Yeah. And I think I think it's because of this outspokenness that I have lived
but lost work. But I'm happy to live and enjoy my life and sleep at night कि मैंने किसी का करियर ख़राब नहीं किया, मैंने किसी से अंडर कटिंग करके पिक्चर नहीं छीनी, मैंने किसी एक्टर को ये नहीं बोला कि भाई उस कंपोज़र को मत लो मुझे ले लो, या उस सिंगर को हटाते मेरे भाई को ले लेते. वी हैव बोथ carved our place through only music, ethics and values taught by Dabu Malik, and a man who's simple and nice. We are the kids of a simple, hard-working man who didn't make it, so we are here to make it. और ये सब जितने हैं, इनके बाद भी तो कोई आएंगे, हमेशा थोड़ी रोक सकते हैं हम लोग को. रोक लो जितना रोकना है. लोगों के दिल में उतरने से तो नहीं रोक सकते ना, bro. That's true. How will you stop me from being in people's hearts? You can remove me from a movie, you can remove me from the industry, but you can't remove me from people's But hearts. then there will come a song when I will listen to it, or anybody will listen to it, message you. And since you spoke about ethics of your father, I would also like to say, you know, on Uncensored with Shardul, we're not really that podcast जो पूछेंगे कि वो लड़की कौन थी जिसने ब्रेकअप किया, या वो म्यूजिक डायरेक्टर कौन था जिन्होंने आपको काम नहीं करने दिया. What I want to end this podcast with is that, you know, Amal, I have known you in 3 meetings, thoda bahut, but there are 2 reasons why I would like to say that I would love to meet you again. Is one, that you've had your own ethics and your own opinions, and second, thank you so much for speaking up for everybody who goes through mental health issues, you know, in our country. Because मैंने अभी रिसेंटली पॉडकास्ट किया था विद ACP भरगुडे हु हैड सॉल्व्ड सुशांत केस. आज भी मुझे गालियाँ आ रही हैं कि आप ने कैसे बोल दिया. नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ एट ऑल. वी ओनली वांट टू टॉक अबाउट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज. बट कोई ये नहीं कहना चाहता है कि भाई यस आई हैव गॉन थ्रू इट. एंड व्हेन वी हैव एग्जांपल्स लाइक यू, जिन्होंने अपने आई थिंक वुंड्स भी पब्लिकली दिखाए, अपने प्रॉब्लम्स भी पब्लिकली दिखाए, एंड देन सक्सीडिंग यू, इट सेट्स अ वेरी गुड एग्जांपल. सो थैंक यू फॉर दैट. Thank you, bro. It's important, and I think through this podcast, more and more people see the more truer and realer side of me. And मैंने जितना भी जो दिल में रहा है वो जुबान पे रहा है. And for that, I think I'm leaving behind an understanding and a legacy to people that you can be famous, you can be successful, also by being just real. वो सिर्फ 10 सुपर हिट गाने देके छा जाना, रियलिटी शोज पे आके अपना नाम कर जाना, या 10 फिल्म फेयर अवार्ड ले जाना या आईफाज ले जाना, ये सब मिलता है आपको, आपके भाग्य में हो और मेहनत साथ आप जोड़ो तो ये सब मिलता है. बट अच्छे इंसान रहने से और रियल इंसान रहने से रात को अच्छी नींद आती है और सुबह अच्छा मूड रहता है. It's important to be that. And it's important that we remember that. Thank you so much for being a part of Uncensored with Shardul. I think we have in many things to still talk, so I would request, We'll have season 2. Yeah, the studio is trying to get us out of the studio, so we'll have to close the podcast right now. But thank you so much, Amal, and just stay the way you are. And I hope that अगली बार किसी लड़की का DM आपको जरूर आए जो आपसे बोले मैं गिटार बनना. Usually सब DM मैसेज रिक्वेस्ट में चले जाते हैं. Sorry girls, you'll have to try harder. तो डकोटा जॉनसन के भी उसमें ही गया होगा ना. अभी बड़े लोग की वहाँ वो बड़ी है, यहाँ मैं बड़ा हूँ. Thank you.